Hello students, welcome to ISment. How are you? See, this in this video we are going to discuss another technique through which the prelims MCQs can be solved very easily, and the knowledge that we have gathered is easily applicable in MCQs, making them correct, right? So this is the technique by the name of choosing broad and inclusive options. Choosing broad and inclusive options means that whatever terms, whatever options has given in the question paper, we have to choose which option is talking about broader in broader sense, which is covering more things. Covering more thing means it becomes very tough. If suppose this is the correct answer and the option is here, now we start making a circle. If we frame narrow options, then it will not cover the correct thing. If we try to frame broader options, then somewhere it will cover the correct answer as well. ठीक है, तो यूपीएससी इस अप्रोच को अपनाती है जहां पे उसे ब्रॉडर टर्म्स ज्यादा बनाती है ताकि इनके करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हो सके. ठीक है, नैरो टर्म्स से यूपीएससी जनरली बचती है. ठीक है ना, और उसका रीजन ये है कि नैरो टर्म्स के गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. और सपोज उसमें से अगर कोई आंसर हमने मान लो यूपीएससी ने गलत बता दिया और बाय चांस वो सही निकला, तो बाद में कल को कंट्रोवर्सी होएगी. तो इससे अच्छा है कि ऐसे ऑप्शंस बनाओ ही मत. लेट्स सी. In UPSC prelims, questions often present options where some are broad and inclusive, while others are narrow and restrictive. Choosing broad, inclusive option method helps when you are uncertain about the answer, but can make an educated guess by recognizing that UPSC generally favors broader or more inclusive answers, as they tend to cover a wider scope and are less likely to be wrong. This method works because broad options tend to include multiple possibilities, making them less prone to factual errors. Narrow or extreme options are most likely to be wrong because they often restrict the answer to a specific cases or conditions. Inclusive options cover a wide range of ideas, concepts or outcomes, making them more comprehensive and accurate. मतलब कुल मिला के ये है कि यूपीएससी ऑलवेज ट्राई टू फ्रेम ऑप्शंस विच आर कवरिंग ब्रॉडर एरियाज. ठीक है, नैरो एरियाज को कवर करने के लिए ऑप्शंस बनाएंगे तो उनके चांसेस है गलत होने के. उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि दिस इज ह्यूमैनिटीज. साइंस में क्या होता है, इफ दिस इज करेक्ट देन दिस इज करेक्ट, if this is wrong then this is definitely wrong. In science there is nothing called gray area. Either it is right or wrong. This thing applies in science and not in humanities. ह्यूमैनिटीज में राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है. ह्यूमैनिटीज में क्या अप्लाई होता है, ग्रे शेड. ठीक है, इस वजह से ब्रॉडर टर्म्स ही बनती हैं जब ऑप्शन सही करने हो. तो नैरो टर्म्स जो है वो जनरली गलत होती हैं, नॉट ऑलवेज बट जनरली. लेट्स सी द मेथड टू अप्लाई. Identify broad or inclusive phrases in the options. Look for options that are general, all encompassing, or include multiple elements. ठीक है, compare narrow versus broad. Choose the option that covers a wider range, which cover larger picture, more possibilities. ये इसको सही करने में मदद करती है. ठीक है, अब एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं.
Which of the following statements is most appropriate definition of sustainable development? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड से हमें क्या समझ में आ रहा है? डेवलपमेंट विच इज सस्टेनिंग इटसेल्फ। अब कोई भी चीज सस्टेन कब हो सकेगी? जब उसने एफिशिएंटली अपने आप को डेवलप किया होगा और जो बाकी नेचर की एनवायरनमेंट की चीजें हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. ओके देखिए ये बहुत ज्यादा ब्रॉडर टर्म बन रही है यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा ब्रॉडर डेफिनेशन बन रही है, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं सही होने के। आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट फोकसेस सोलली ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, वेरी नैरो। डेवलपमेंट दैट प्रायोरिटाइजेज इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, हो सकता है लेकिन ये नैरो है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री की बात कर रहा है, तो नहीं, क्योंकि वो हमारे पास ज़्यादा ब्रॉडर टर्म पड़ी है। डेवलपमेंट दैट एनकरेजेस द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती, तो आंसर आ गया ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कैन लीड टू चेंजेस इन ओशन करंट्स, यस। ग्लोबल वार्मिंग में अफेक्ट दी पैटर्न्स ऑफ मॉनसून, अब कैसे अफेक्ट करेगी वो नहीं पता, लेकिन हाँ अफेक्ट कर सकती है, ये लिखे ऑप्शन में, तो हाँ करेगी। ग्लोबल वार्मिंग कैन कोज द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, यस। कैन कोज, यस इट कैन कोज। कैसे कोज करेगी, कितना करेगी, कब करेगी, ये नहीं पता, लेकिन कर सकती है, हाँ कर सकती है। तो तीनों ब्रॉडर टर्म्स हैं, तो तीनों सही हो गई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकती हैं? पेड़ काटने की, जंगल काटने की क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकती हैं? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो सकती है, हाँ हो सकती है। क्वेश्चन में ही आ गया कैन। इंक्रीज इन सॉइल इरोजन, हाँ हो सकता है। डिस्ट्रप्शन ऑफ द वाटर साइकिल, हाँ हो सकता है। इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर, हाँ हो सकता है। बेस्ट डिस्क्राइब्स रोल ऑफ यूएन। UN is a global organization that focuses solely on promoting peace and security. That focus solely on promoting peace and security. चलो, UN is a global organization that promotes economic, social, and cultural development in addition to maintaining peace and security. Economic, social, cultural development in addition to maintaining peace and security. This is more broader. दिस टर्म इज ऑल्सो ब्रॉड, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ पीस एंड सिक्योरिटी बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमी भी आ गई, सोसाइटी भी आ गई, कल्चर भी आ गया। यूएन प्राइमरी रोल इज टू मीडिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेंबर कंट्रीज, वेरी नैरो। ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर एड्रेसिंग एनवायरमेंट इश्यूज, सिर्फ एक ही चीज पे फोकस है, नहीं, तो आंसर विल बी बी, because this option is covering all the three options. So this will become right. Next option, next question. Factors contribute to greenhouse effect. किन की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, यस। मीथेन हो सकता है, वाटर वेपर हो सकता है, ऑक्सीजन नहीं हो सकता, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम ऑक्सीजन को हटाएंगे, वाटर वेपर, ये हमें पता है, यस इट इज अ वाटर वेपर, इट इज अ ग्रीन हाउस गैस। मीथेन, yes it is also. Carbon dioxide, yes it is also. So the answer becomes 1 2 3. Soil erosion, deforestation, yes. Overgrazing, yes. Urbanization, yes. Crop rotation. अब देखो, यहां फोकस करो। क्रॉप रोटेशन डज नॉट प्रोमोट सॉइल इरोजन, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। क्रॉप रोटेशन हमने सब में पढ़ा है कि ये तो बल्कि सॉइल इरोजन को रोकने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन की वजह से सॉइल इरोजन कैसे हो सकता है? जो चीज किसी को रोकने के लिए बनी है वो उसके लिए, वो उसी की चीज को कैसे बढ़ावा दे सकती है ना।
ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर करेक्ट? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, देखो पॉजिटिव चीज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही सारे सही होंगे। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, विंड हमें पता है, फॉसिल फ्यूल्स नहीं हो सकते, हाइड्रो पावर यस यस यस, तो सारी पॉजिटिव चीजें सही हो गई। नेक्स्ट, रिड्यूस कैन हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज में एयर पोल्यूशन कैसे कम हो सकता है? तो जो भी ऐसी चीजें होंगी जिनसे पोल्यूशन बढ़ रहा है वो नेगेटिव होंगी, जिनसे पोल्यूशन कम हो रहा है वो इसके सही आंसर होंगे। प्रमोटिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पोल्यूशन कम होता है इससे, यस। रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल एमिशन, यस। एनकरेजिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यस। प्लांटिंग मोर ट्रीज, यस। ग्रीन हाउस गैसेस, ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आई थिंक गेट्स रिपीटेड एनीवेज। Which of the following sectors contribute to economic growth in developing countries? Economic growth in developing countries. Word is developing. So let's see, developing countries के लिए क्या important होता है? Primary sector, secondary sector, tertiary sector, है ना? जब इनको हम प्रमोट करेंगे तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डेवलपमेंट आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। एग्रीकल्चर यस, इंडस्ट्री यस, सर्विस यस। फोर्थ ऑप्शन इज स्पेस एक्सप्लोरेशन, yes, space exploration is also an important component of economic growth, but for developing countries, developing means वो जो grow कर रही हैं, which are not super rich countries, उनके लिए सबसे जरूरी क्या है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस। so space exploration will not be a right option over here, समझे? देखने में स्पेस एक्सप्लोरेशन भी लग रहा है कि हाँ इससे भी होगा, एंड यस इससे भी होगा, बट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं मान सकते हम, क्योंकि उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करना। इस वजह से इस ऑप्शन को गलत कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कंक्लूजन हो गए क्वेश्चंस। Choosing broad inclusive options method is highly effective in UPSC CSE prelims, especially when you are uncertain. By recognizing broader, more comprehensive options, you increase the chances of selecting the correct answer. Avoid the pitfalls of narrow or restrictive options. ठीक है, देखो ब्रॉड चूज करना है और नैरो को अवॉइड करना है, ऐसा ट्राई करना है, ठीक है। देखो ब्रॉड तो सही होगा ही होगा, ऐसे बहुत कम चांसेस होंगे कि जहां पे नैरो भी सही हो जाए, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है इस टेक्निक के अंदर। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज गो थ्रू दी होल प्लेलिस्ट, ठीक है, जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में पूरा समझ में आएगा। यू विल बी एबल टू लर्न द एग्जाम, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एग्जाम इज, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दिस कमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।